So we started with the excretory system. हाँ जी बेटा. Okay. So after discussing the circulatory system, okay, so where the blood is actually going to transport the essential nutrients and food to the all body parts. Now the next is about the excretion, that whatever the waste that is in our body, how that is excreted out. Yes, Shubh. Ma'am, your voice is cracking. Now, Ma'am, it is cracking too much. okay. Right. So excretion, it is a process of the removal of the waste product from the body. Okay. So all living organisms, they excrete. Okay, and that is the important step, because whatever the waste that is accumulated from the body, it should be ejected out from your body. Okay, different organisms, living organisms, they are having different mode of excretion. Right? If we talk about sponges, the microorganisms, sponges ho gaye, hydra, amoeba, they are the microorganisms, okay, that live mostly in the water. Now, do you think that they must be having a proper excretory system or any circulatory system that is going to circulate the essential nutrients and the excretion of the waste products that should be there? No. Since they are not having any proper circulatory system, so that's why there should be, or they are not having the proper excretory system also. Okay, तो इनके केस में जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है, बिकॉज दे लिव इन वाटर. तो जैसे ही वो वाटर लेते हैं, ओके, जो वाटर लेते हैं उसी में ही जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट करके वो वाटर जो है वो रिमूव कर देते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज. ओके, सो व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्सक्रीशन? What is their mode of excretion? The waste material is ejected out in water. Okay, तो जो पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं उसी पानी में ही वो क्या कर देते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा रिलीज आउट कर देते हैं. ओके, हाँ जी, क्लियर है? Since they don't have any proper circulatory system, okay, blood fluid parts कुछ भी नहीं है इनमें, तो इनका जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीटरी का और सर्कुलेटरी का वो बहुत ही सिंपल है. पानी में ही जो है वो सारी चीजें ये रिलीज आउट कर देते हैं. इफ यू टॉक अबाउट सम हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम अपनी बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, ह्यूमन बीइंग्स दे आर हैविंग द प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, we are having the proper excretory system. Whatever the waste that is generated in our body, okay, it is ejected out through a proper mechanism. And in case of our excretory system, we are having kidneys, a pair of kidney. Yes, 2 kidneys हैं. Okay, किडनी के बाद we are having ureter, then bladder,
urinary bladder and urethra. These are the various parts of our excretory system. These are the various parts of our excretory system. Okay. And in our body, 95% of the waste is water. Okay. 2 to 3% जो है वो आपका मोस्टली यूरिया होता है एंड द अदर प्रोडक्ट्स. ओके. अब ये वेस्ट भी जो है वो आपके ब्लड में ही आएगा. ब्लड जो है दैट विल बी टेकिंग द वेस्ट. ओके. सो जो आपकी किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड में से जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको ब्लड में वापस भेज देती हैं और जो वेस्ट है दे एक्सेप्ट दैट वेस्ट. अब आपकी बॉडी में जो वेस्ट है वो कैसे कैसे जनरेट हो रहा है, कौन सा वेस्ट है और कौन से आपके मैकेनिज्म्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं दैट आर इन्वॉल्वड इन दिस. हाँ जी. सबसे पहले हमने लंग्स पढ़ के आए. हम लंग्स जो है वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, कौन सा वेस्ट एब्जॉर्ब करती है? लंग्स जो है वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वेस्ट. कौन सा वेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. द लंग्स दे हेल्प टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है. किडनीज जो है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी से, वो रिमूव करने में हेल्प करती हैं. आपकी स्किन, यू आर हैविंग स्किन. स्किन पे स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग से क्या होता है? यू रिलीज एक्सेस ऑफ वाटर. ओके. यू रिलीज एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो आपकी बॉडी में जो एक्सेस स्वेट है, जो एक्सेस वाटर है, वो थ्रू स्वेटिंग आपके बाहर आता है. ऐसे ही होता है. ओके. समटाइम्स in the summer season you see some yellowish orange patches under your arms or under your armpits. ऐसे होता है. कपड़ों पे हल्के हल्के येलोइश जो है वो आपके स्पॉट्स होते हैं. समर्स में होता है ऐसे. कपड़ों पे स्टेन्स आते हैं ना. ओके. दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्वेट. ठीक है. दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट्स दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी. तो आपकी जो स्किन है वो किस में हेल्प करती है? दैट हेल्प्स टू रिमूव द एक्सेस ऑफ स्वेट एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम योर बॉडी. ओके. तो ये कुछ तरह का वेस्ट है जो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट शुड बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम योर बॉडी. ओके. एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किसके? URETHRA, यूरेथ्रा. हाँ जी. नेक्स्ट राइट डाउन excretory system in human beings. Now we will be discussing in detail this excretory system. Excretory system in human beings. Excretory system in human beings. So like I told you, the human excretory system, it consists of kidneys, a pair of kidneys there. Kidneys का कौन सा कलर होता है बेटा? ब्रिक रेड कह सकते हैं, ईंट जैसा, रेडिश ब्राउन, ब्रिक रेड. ठीक है. दे आर इन पेयर, यानी कि दो किडनीज होती हैं. ओके. एक लेफ्ट है और एक राइट किडनी है. ओके. एंड वन थिंग हियर which is very very important, that the kidneys they consist of nephrons. The kidneys they consist of nephrons. आवाज क्रैक कर रही है. हाँ. So we were discussing about the kidneys. Kidneys, there are two kidneys in our body, in the human. Okay, the left kidney and the right kidney. Okay, the color of the kidney is brick red. Okay, and what is the shape?
किडनी बीन्स, ओके, बीन लाइक शेप होती है इसकी, किडनी बीन्स की जैसे शेप होती है ना। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वियोलीज हैं, फर्दर ब्रांचिंग है ना। वैसे ही जो नेफ्रॉन्स हैं, वैसे ही जो आपकी किडनी है, किडनी के अंदर जो है वो क्या है, नेफ्रॉन्स हैं, दैट एक्ट एज अ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये कौन सा काम करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। दैट मीन्स योर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय दीज कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। Okay, your blood is basically filtered out with the help of these nephrons that are the coiled structures. हाँ, किडनी बीन शेप होती है उसकी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? अब इमेजिन जो आपका ब्लड है, दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट मूव्स टू द किडनीज। अब किडनीज की बात क्या होता है कि वहां से जो किडनीज हैं, जो हार्मफुल चीजें हैं वो ब्लड से ले लेती हैं, एंड वट एवर द यूजफुल सब्सटेंस इज देयर, दैट इज गोन बैक इनटू द ब्लड। वो ब्लड में दोबारा चली जाती है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, वाटर है, मिनरल्स हैं, वो दोबारा जो है वो किस में चले जाते हैं, ब्लड में। और जो आपका हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी, दैट फर्दर पास्ड थ्रू दी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन से वो जो आपका ब्लड है वो फिल्टर होता होता, ठीक है, दैट विल एक्चुअली सेपरेट आउट द हार्मफुल एंड द यूजफुल थिंग्स। ओके, तो अब जो आपका ब्लड है यहाँ पर नेफ्रॉन से पास होने के बाद क्या होगा, इसमें से जो हार्मफुल और ये यूजफुल थिंग्स हैं, दे विल बी सेपरेटेड आउट। ओके, एंड नाउ इन दिस केस इफ वी डिस्कस द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बना लो और मैं उसको साथ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, जिनकी किडनी खराब हो जाती हैं, फिल्ट्रेशन वहीं से स्टॉप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका फिल्टर होना है वो किडनीज में होना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, यूरेटर जो है, वो जो वेस्ट है जो किडनीज में जनरेट हुआ है, वो किस में जाता है, ब्लैडर में। ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। यानी कि जो सारा काम करना है वो किसने करना है, किडनीज ने करना, हो जाता, मैनेज हो जाता। तो किडनी बीन जैसी शेप होती है इनकी, राजमा जैसी, ठीक है। सो वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने, ओके। और आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा आपके कलर चॉक्स होते ही नहीं है। ब्लू और रेड, ओके। ये कौन सी किडनी होगी, वेरी गुड। एंड दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस तरफ होगा फिर, यानी कि आपकी रेनल आर्टरी किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड, और रेनल वेन, ठीक है। तो ये याद रखना है।
2 मिनट चौक आ जाए फिर मैं ड्रॉ करती हूँ. थैंक यू बेटा. ओके. राइट. हाँ जी ठीक है बेटा. विजिबल है आपको? बेटा आवाज मत करो बस. मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप बना लो साथ में. Is this clear? Yes. Is this clear? This is renal artery and this is renal vein. So the pipe-like structure that connect the kidneys and the bladder, they are ureter. ओके बेटा. आप पेंसिल से कर सकते हो, मैंने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया. ठीक है. हाँ जी क्लियर है बेटा. बंद हो गई थी. हाँ जी डन.
हाँ जी, डन। हाँ जी, डन। Okay, now listen to the working. So as I told you that in the kidneys, the nephrons are there that act as a filter for the blood. Okay, तो यहाँ से नेफ्रॉन से जो आपका ब्लड है वो फिल्टर होके पूरे बॉडी पार्ट्स में फिर से चला जाएगा. Whatever the waste is accumulated in the kidneys, जो भी वेस्ट जो है वो आया है, वेस्ट मैंने आपको बताया है क्या क्या हो सकता है, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. Okay, urea, ammonia, uric acid and water, these are your waste products. Okay, that the waste product, it travels from the kidneys through the ureter. Ureter जो है वो pipes हैं, that will be transferring this waste from the kidneys to the urinary bladder. In the form of urine जो है वो आपका waste जो है वो जाता है. Okay, in the form of urine, the waste will be moving from the kidneys to the urinary bladder, where the urine it stores temporarily. ठीक है, where the urine it stops temporarily. थोड़े टाइम के लिए जो आपका यूरिन है वो कहाँ पर स्टोर होता है, urinary bladder. Okay, and then it is out from a small opening called urethra. Okay, तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर चले जाता है. The urine that is produced as a waste product. Okay, is that clear? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, these are the waste products that are generated in your body. The amount of urine produced in an adult human being is 1 to 1.8 liters. ठीक है, एक दिन में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 से 1.8 लीटर जो है वो यूरिन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. ओके, और एक्सक्रीट करते हैं, राइट. एंड 1 to 1.8 लीटर्स हरमी, एंड द टेस्ट फ्रॉम योर ब्लड, आपके ब्लड से या आपके यूरिन से भी कई बार बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता चलती हैं. ओके, इफ योर ब्लड इज हैविंग द एक्सेस ऑफ पस सेल्स, यूरिक एसिड, ओके, और शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको आपका यूरिन भी बताता है और ब्लड से भी आपको पता चल जाता है. Okay, so whenever there are some of the things that are present in your blood, harmful things जो हैं वो आपकी ब्लड में ज्यादा है या आपके यूरिन में ज्यादा है, that means some of your body functions they are not doing properly. Okay, right? ठीक है, उसके बाद किडनी फेलियर. नेक्स्ट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर. क्या क्या रीजन हो सकते हैं बेटा किडनी फेलियर्स के? हाँ जी, और फूड पॉइजनिंग से किडनी तोड़ना हो जाती है. हाँ जी बेटा,
Okay. So whenever these waste products they are accumulated in excess in your body, then that means your body is not working properly. इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो वेस्ट है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि आपकी किडनीज जो है वो काम नहीं कर रही हैं सही से. ओके, इन दैट केस द किडनी फेलियर प्रॉब्लम्स आर देयर. In that case, the kidney failure problems are there, and in order to Bishop, stand up. Come here. Stand here. And in order to get rid of the waste that is accumulated in your body, we are having two methods. Okay, one is dialysis. You all have heard the term dialysis. सुनी हुई है आप सबने? क्या होती है dialysis बेटा? It is a treatment in which whatever the waste that is accumulated in the body, okay, that is removed out. क्योंकि पर्सन की जो किडनी है वो फेल हो जाती है, और जो काम किडनी नहीं कर सकती है वो हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियली करना पड़ता है. ओके, इसमें क्या किया जाता है? पर्सन की आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है. ओके, यू कैन राइट डाउन. The blood is taken from the artery. आर्टरी से जो ब्लड है वो लिया जाता है. ओके, that is actually passed through a dialysis machine. उसको डायलिसिस मशीन में पास करते हैं. डायलिसिस मशीन में जो आपका ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है. ओके, the waste is removed out from that blood, and again the purified blood or the clean blood that is again passed through the vein. Okay, बेटा आर्टरी से उसका ब्लड लिया जाता है. ओके, दैट ब्लड इज पास्ड थ्रू द डायलिसिस मशीन, जहां से वो प्यूरिफाई हो जाता है. प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो उसकी वेन में दोबारा से क्या कर देते हैं? वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? Dialysis machine, and then again it is transported into the vein.